So may I come in? May I come in? स्मृति बैठी। Thank you, sir. स्मृति अपना परिचय दीजिए। So my name is Smriti. आप इंग्लिश में बोलेंगे या हिंदी में? Sir, I'm comfortable in both the बोल languages. देंगे जैसा आप ठीक समझें। हाँ जी sir. So my name is Smriti Rana. I have done my graduation from English literature. After that, I went for my masters, which I did in sociology. From Delhi University? Sir, from Indira Gandhi National Open Indira University. Gandhi. Yes, sir. And after which I started preparing for my civil service exams. And presently, I am working with an edtech company in the education field. And my hobbies include solo traveling and mentorship. Mentorship. What is mentorship? Whom do you mentor? Sir, I have about 600 students with me. And on everyday basis, I am helping them in their academics, in their emotional upheaval, any psychological support that they require. Sir, I consider myself as their big sister who tries to help them in every stage of their life. It need not be only academic, but if there are other things that they require support, then I'm present. You did not attempt appearing in the UPSC held examination, civil services? Sir, not this year. Earlier, I have attempted UPSC civil service examination. Yes, sir. How many times did you appear? Sir, I have appeared 5 times. 5 times. Yes, sir. What was the reason? Did you analyze the reason why you couldn't make it? Sir, I think it is because of my optional. I was not scoring in my optional exam. I think that is the major reason that I could not appear for the interview. What was your optional paper? Sir, my optional was sociology. Tell me something about women's empowerment. Sir, as Swami Vivekananda ji said, that no country can attain growth without women empowerment. So, women empowerment is the basic foundation on which a society can be built. Sir, women empowerment includes a number of elements. It is political empowerment, financial empowerment, economic empowerment, social empowerment, and psychological empowerment. But when a woman becomes financially independent, economically independent, family ties get threatened, This is the general belief. Do you agree with this perception? Sir, I will differ on this particular viewpoint. Sir, women has an intrinsic quality where they can mold themselves according to the situation, according to the condition. In recent times, we have seen that women are trying to balance their home as well as their work. And I think because of the support of the family, because of the support of the new technology, sir, I think they are well able to manage both their home as well as their work. Women have been given reservation up to panchayat level. Yes. But not in the legislature, state legislature or parliament of India. They have not been given any reservation, 33% reservations. Why so? Sir, recently there has been an act where the reservation for women has been extended in the state legislature as well as in the parliament up to 33%. It has not come in the parliament, is it? It has been passed, but it has not been probably notified or... Sir, it will be as much as I have read, it will be enforced from 2026. 26? Yes, sir. Okay. And it will be enforced till 15 years. After which I think there will be a consultation if this practice should be continued or not. Yes, sir. So, do you consider this as a progressive step? Sir, definitely it's a very positive step. Presently, sir, if we look at the present number, there are 14% members of the present parliament who are women. And sir, I believe that if more women are entering into the political field, then they can put forth the viewpoint, the challenges that women are facing on day-to-day basis. Thank you. Sir. Smriti, you're a solo traveler. Your hobby is solo traveling. Which kind of problems women are generally facing while solo traveling? The foremost issue is related to the safety and security. Sir, presently, whenever a woman wants to step out of her house, out of her comfortable zone, she always has this thing in mind if she will be able to go to that place independently or not. This has been our mindset that we require some kind of male support with us in order to travel. So this is one stereotypical thought that I would like to break as well. Sir, I would like to present this view that I have traveled to a number of destinations all by myself, and I have never faced the safety issue, but the fear of
of being harassed or of being uncomfortable. That has always been in my mind. So the major issue is related to safety and security. Yes, sir. Only one issue? Sir, there has been other issues as well. So the transportation that is present, it is not up to the mark. We have good transportation in major cities like Delhi, Mumbai, Bangalore. But when we go to the offbeat places, the backward areas, the major transportation includes buses which are not in good condition. That is also one of the issue. Sir, apart from that, the accommodation, the hotel that we have, so there also the sanitation conditions are not up to the mark, and I believe that government should look into it. Have you heard about paid period leave debate in the recent time? Yes, sir. What is your opinion about this? Paid period leave should be given to women or not? So recently in the parliament there was a debate. Smriti Irani ma'am, she put forth her view that it should not be extended because it is not a condition in which women are handicapped. So she also pointed this out that whenever a woman is on paid period leave, then it would also lead to social discrimination because in her office everyone will be aware of this particular condition. But sir, I will differ in this viewpoint. I believe that period leaves should be extended because sir, the extent of pain and uncomfortness that the woman has to go through, and sir, side by side working, it is actually a very difficult situation, but this needs to be more talked about. I think the major problem related to this is that we are not conversing about this particular issue. इसके अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट आ रहा है वो ये है कि अगर पेड पीरियड लीव दिया गया तो एम्प्लॉयर्स फिर जॉब पर नहीं रखेंगे महिलाओं को, उसको कैसे काउंटर करेंगे? सर, जो ऐसा व्यू है ये प्रेगनेंसी के टाइम पर भी आता है, जो प्रेगनेंसी लीव होती है अबाउट 6 मंथ्स की सर रहती है. बट सर हमें ये समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में 50% जो है वो महिला हैं, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उन्हें हर महीने गो थ्रू करनी पड़ती है, तो ये मेल्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारी एक सोसाइटी का ये पार्ट है. उन्हें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ वुमेन के लिए है. प्रेगनेंसी के लिए जो कानून है हमारे पास, हाँ जी सर, उसमें भी एम्प्लॉयर कई बार यही करते हैं. ये रिपोर्ट्स तो होती ही हैं कि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें मैटरनिटी लीव देना होगा, 6 महीने का लंबा लीव देना होगा, वो किसी ना किसी बहाने से एम्प्लॉय को निकाल देते हैं. सर डेफिनेटली मेरा मानना ये गलत बात है. जो क्वालिटीज़, जो टैलेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन लेकर आती है वो अपने आप में यूनिक है. सर अगर आप कहेंगे कि वो टैलेंट, वो यूनिकनेस मेल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कंपनसेट हो जाएगा, तो सर वो मेरा ये मानना नहीं है. तो सर डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन और मेल का रेशियो हमें ट्राई करना चाहिए कि इक्वल रहे. और अगर हमें इसे देखना चाहिए कि वुमेन जो है साथ के साथ अगर काम करने के लिए आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो कंफर्टेबल भी हो. ओके, व्हाट यूपी गवर्नमेंट इज डूइंग टू एम्पावर वुमेन इन यूपी? टेल मी some schemes or some initiatives taken by the government. Sir, in recent year there has been a number of schemes. Sir, first and foremost I would like to talk about Mission Shakti, which is primarily focusing upon the safety and security of women. Sir, there has been women centers which has been opened in every panchayat. There are about 58,000 panchayat in UP. Apart from that, sir, there is pink booth. So a separate infrastructure has been installed, which would primarily focusing upon providing administrative safety and security to women. Sir, apart from that, there is a scheme called Bhagya Lakshmi, and the main purpose of the scheme is to celebrate the birth of a girl child. So the mindset that we have presently that girls are considered as burden for a family, we would like to wipe that out with that scheme. Any else scheme? Sir, other schemes are related to marriage, and they will be extending financial support to the BPL families in order to their daughters in marriage, in their marriages. So UP government is regularly changing some names of cities, roads and stations. Do you agree with these steps of government? Sir, if this demand is coming from the people, and if there are no administrative constraints,
then I agree that there should not be a problem if the name of the railway station or the name of the cities are being changed. जनता की डिमांड तो कुछ भी हो सकती है, इसी के लिए तो सरकार है। सरकार को ये सोचना होगा कि कितना खर्च इससे आ रहा है सरकार के ऊपर, ये बर्डन कौन सहेगा? ये बर्डन हमारे और आपके टैक्स से जाएगा। बट सर, अगर जनता की डिमांड है कि वो चाहते हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ वो देखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि नाम चेंज हो, अभी सर देखा जाता है कि हम मेडिवल हिस्ट्री से अपने आप को इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, पर ज़्यादातर अगर हम नाम देखेंगे हमारे रोड्स का, हमारे सिटीज़ का, तो बहुत इंस्पायर्ड है मेडिवल हिस्ट्री से। बट सर हमारी हिस्ट्री बहुत डीप है सर, हमारी हिस्ट्री में चोला एम्पायर भी थे सर, हड़प्पा एम्पायर भी थे, तो सर वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं गुम हो जाती है जब हम ज़्यादा फोकस इन मेडिवल हिस्ट्री के नाम से करते हैं सर। ये सारी डिमांड्स और सारे इनिशिएटिव्स नाम बदलने के यूपी में ही क्यों हो रहे हैं? बगल में बिहार है, बिहार में तो ऐसा नहीं हो रहा। क्या बिहार की हिस्ट्री कम रिच है? सर डेफिनेटली ये केस जो है यूपी में देखा गया है ज़्यादातर, बट सर बाकी स्टेट्स में भी इसके लिए हमने इंक्लिनेशन देखा है सर, जैसे कि बॉम्बे का नाम मुंबई चेंज कर दिया गया, मद्रास का नाम तमिलनाडु चेंज कर दिया गया, बैंगलोर का नाम बेंगलुरु कर दिया गया। देन यू आर सेइंग दैट इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया, इसके लिए कोई रेफरेंडम किया गया था जनता के बीच? जनता ने कोई प्रोटेस्ट किया था? ये डिमांड आपको कैसे पता चला कि लोगों ने डिमांड किया? सर रेफरेंडम या जनता की डिमांड का बहाना है सरकार के पास? सर मेरा मानना है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के, तो सर अगर पॉलिटिकल लीडर्स कोई डिसीजन ले रहे हैं, आई एम श्योर वो जनता की डिमांड देखते हुए, जनता की रिक्वायरमेंट देखते हुए, अपनी हिस्ट्री देखते हुए ये डिसीजन ले रहे हैं सर। सो यू आर बैकिंग द गवर्नमेंट। आई हैव रेड अ लाइन रिसेंटली दैट द रूट कॉज ऑफ corruption is not with politicians but with bureaucrats. Sir, I would how you will defend this line? Sir, I would also like to extend this particular statement. The root cause of corruption lies with the bureaucrat as well as the people also, sir, the society also. There has been gap in our societal values, which is also leading to the deepening of corruption in our society. Sir, mainly if we see at the bureaucracy, we observe that there is a domino effect, there is a demonstrative effect. If the other person is doing it, why can't we? This kind of attitude, wrong attitude is there among the bureaucrats. Also, sir, if the bureaucrats, at the same time, sir, the society is also supporting it. I feel that bribe giver are equally वही काम कर responsible. रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस करते हैं, अपने ऊपर आए हुए ब्लेम को लोगों के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर थोप देना, इसे तो वही कहेंगे। आप तो फ्यूचर की ब्यूरोक्रेट हैं, तो आपको अभी से ही ट्रेनिंग है इस बात की कि अपने ऊपर जो ब्लेम आ रहा है, अगर करप्शन के ब्लेम्स हैं ब्यूरोक्रेसी पर, तो फिर उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते ना ब्लेम को। सर ये तो स्किप करने वाली बात हुई, बचने वाली बात हो गई। सर ब्यूरोक्रेसी भी एक तरह से सोसाइटी का ही पार्ट है सर, मेरा ये मानना है। और सर डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी में भी इश्यूज़ हैं, लूप होल्स हैं, हमारा जो गाइडलाइंस है, हमारे जो लॉज हैं, उनमें भी लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा हमारे ब्यूरोक्रेट्स कभी कभी उन्होंने उठाया है। सर डेफिनेटली वो गलत है, बट सर अगर हम अपनी एजुकेशन लेवल पर ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें तो सर डेफिनेटली सोसाइटी लेवल पर चेंज आ जाएगा। और सर अगर सोसाइटी लेवल पर चेंज आएगा, अगर हमारे फैमिली सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ जाएगा, तो सर हम जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें हम ये प्रॉब्लम नहीं देखेंगे डेफिनेटली सर। चलिए, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? सर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ सर। नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। ड्रिंक करती हैं या नहीं करती? नो सर। नहीं करती हैं। चलिए, मान लीजिए आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती है जहाँ खाने पीने के नाम पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, अल्कोहल कंज्यूम करना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्वियसली हाइपोथेटिकली ही जवाब देना है आपको, लेकिन ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा कि वहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आपको अल्कोहल कंज्यूम करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे आप? सर मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स की दो लाइफ्स होती हैं, एक पर्सनल लाइफ होती है और सर एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। सर पर्सनल लाइफ में मेरे कुछ अपने वैल्यू सिस्टम है, मेरी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, मेरे मान्यता है
तो सर अगर मेरी मान्यता मुझे इसकी तरफ इंक्लाइन नहीं करती कि मैं ड्रिंक करूं, तो सर मैं ड्रिंक नहीं करने वाली तो आप जॉब छोड़ देंगी? आपके पास यही कंडीशन है हम्म। कि आपने या तो ये तय किया कि भाई मैं अल्कोहल कंज्यूम करूंगी क्योंकि वही खाने पीने का जरिया है वहाँ, अदरवाइज आपको जॉब छोड़कर वापस आना पड़ेगा अपने शहर में। क्या करेंगी आप? सर मैं रीज़न जानना चाहूँगी सबसे कि ऐसा क्यों है कि अल्कोहल कंजप्शन से ही। वो तो ठीक है, वो अलग तरह की लड़ाई है। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें यही कंक्लूजिंग पॉइंट है। कंक्लूजन यही है कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको जॉब छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। क्या डिसीजन होगा आपका? सर मेरा मानना है कि अगर जिस पद पे मैं काम कर रही हूँ सर, वैसे ही पद और जगह भी अवेलेबल होंगे, तो सर अगर मेरे को पद छोड़ना पड़े तो सर मैं कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ के साथ। पर मैं ये इंश्योर करूँगी कि जो भी मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे, अगर मैं और कहीं भी काम करती हूँ तो मैं उसी शिद्दत से, उसी दृढ़ता से वो मतलब काम आप करूँ। जॉब छोड़ देंगी? यस सर। ठीक है। अगर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जॉब के बारे में बात नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आ गई कि आप किसी ऐसे आइलैंड पर हैं जहां अल्कोहल भारी मात्रा में है, एनर्जी का सोर्स वही है, और अगर आपने उसको कंज्यूम नहीं किया अगले 7 दिन में आप निश्चित तौर पर मर जाएंगी। मरना पसंद करेंगे, अल्कोहल लेना पसंद करेंगे? सर जान है तो जहान है। ठीक मैम। हाय स्मृति। हेलो मैम। स्मृति, आपने इग्नू से कोर्स किया है, राइट? यस मैम। सो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद इट इन इंडिया? मैम डेफिनेटली डिस्टेंस लर्निंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है अगर हम कंपेयर करें रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैम करिकुलम में डिफरेंस है, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी में डिफरेंस देखा गया है। मैम क्योंकि मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ तो ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है कि अगर हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर हम कोई एडटेक कंपनी ज्वाइन करते हैं और रेगुलरली कंसिस्टेंटली अगर हम क्लासेस ले रहे हैं तो सर मैम वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। बट अगर डिस्टेंट है तो उसमें थोड़ा सा मैम गैप देखने को मिलता है। बट the vastness of India plus the variety of sections that we are talking about, not only class, talking about the rural societies and marginalized sections, हमारे पास ऑप्शन तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का ही है। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग पे ही फोकस करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस एंड इन्वेस्टमेंट विल टेक सम टाइम। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्या चेंजेस लानी चाहिए हमें एटलीस्ट, ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके? मैम सबसे पहले आई थिंक एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। मैम अगर हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का ज़रिया देखें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, वो इतना अच्छा नहीं है सर। मैम इंटरनेट की लिमिट कम है, इंटरनेट की स्पीड कम है। तो मैम अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर पाएँ, मैम अगर अभी कोविड टाइम्स पर भी काफ़ी फोकस करा गया था, हमारे पास डिजिटल एजुकेशन के लिए टेलीविज़न पर भी ब्रॉडकास्ट करे गए थे एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो मैम वो एक एलिमेंट है जिस पे हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम जो फैकल्टीज़ हैं, अगर बिकॉज हमारा डिस्टेंस लर्निंग है तो सर एक डिफरेंट टाइप की पेडागॉजी हमें अपनानी पड़ेगी, जहाँ पे जो लर्निंग है वो इंटरेक्टिव है, म्यूचुअल लर्निंग है, टू वे कम्युनिकेशन रहे। पर अभी तक आप सिर्फ डिजिटल आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हो, बट इग्नू तो सेल्फ स्टडी की फोकस करता है। आप ज्वाइन करोगे, एनरोल करोगे, आपको बुक्स दे देंगे, उसके बाद आप खुद असाइनमेंट सबमिट करो और एग्जाम के लिए आओ। इट इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट सेंट्रिक सेल्फ असेसमेंट वे ऑफ टीचिंग। सो देर इज़ नो रोल ऑफ आईसीटीज और इंटरनेट और व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो ये क्यों नहीं हम फोकस कर सकते हैं? यस मैम। मैम रिसेंटली इग्नू ने अपना जो स्कोप है थोड़ा सा वाइडन करा है। मेरे पास अभी भी मैं एक कोर्स में, पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल हूँ, तो मैम उनकी वीडियोस अभी यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू हम आपस में कनेक्टेड हैं। तो मैम आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है इस डायरेक्शन में कि वीडियोस जो हैं उससे रिलेटेड वो यूट्यूब पर अपलोड करी जा रही हैं मैम। और आई थिंक अगर इसका हम स्केल बढ़ा दें, अगर हर कोर्स के वीडियोस अगर अवेलेबल हो सकते हैं तो मैम इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग में फोकस की कमी आ जाती है, कई बार कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है। तो मैम ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा अगर हम डिजिटली उस गैप को कवर कर पाएँ। आई गॉट योर पॉइंट कि इग्नू ये सब स्टेप्स ले रहा है, बट टॉकिंग अबाउट द एरियाज जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है नहीं, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे इतना
ऐसी जगह पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट या उतना बैंडविड्थ नहीं मिलने वाला है, तो आपको तब सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, राइट? तो ना यूट्यूब का इतना एक्सेस मिलेगा या आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस, ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम घंटों के लिए रहता है। सो ऑल ऑफ दिस मीन्स दैट आपका सेल्फ स्टडी पे फोकस रहेगा, दैट इसमें कंटेंट इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? क्योंकि कंटेंट से ही आप कर सकते हो। तो उस समय पे व्हाट इज द लिंक दैट यू थिंक कि इस चीज को, बिकॉज अगेन टॉकिंग अबाउट द वास्टनेस ऑफ इंडिया, उसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्या इंप्रूव कर सकते हैं? डिजिटल मीडिया अग्रीड, बट एट द बेसिक क्या करना है हमें? मैम आई फील करिकुलम में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं हम, जो उसका कंटेंट है अगर वो ज़्यादा हम इंटरेक्टिव बना पाएँ, बिकॉज मैम बहुत ही माइनर सी चीज़ है, अभी भी इग्नू की बुक्स हैं, वो मतलब कंटेंट कॉन्सेंट्रेटेड नॉट कलर्ड। तो मैम हमारी ये साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी है कि अगर कंटेंट पिक्चराइजेशन से बताया गया है, अगर कंटेंट में क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, जैसे कि एनसीईआरटीज़ में भी 2 कैरेक्टर थे जहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं, तो मैम अगर हम ऐसे करके कुछ माइंड इग्नाइट करने वाले एट्रीब्यूट्स ला पाएँ इन किताब में, तो मैम काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैम मैं एक और चीज़ पे सजेशन देना चाहूँगी मैम, अगर हम एक पर्टिकुलर सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई ऐसे कम्युनिटी, अगर एक पर्टिकुलर स्कूल है वहाँ पर अगर वीकली जो स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं डिस्टेंस लर्निंग से, अगर वो मिल पाए तो मैम वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने पैरा डिप्लोमेसी के बारे में सुना है? यस मैम। तो यूपी पैरा डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट लेते करते हैं? यस मैम। किन कंट्रीज के साथ? एक एग्जांपल दीजिए। I'll require it. Take it. You want a hint? I'll give you that also. Yes ma'am. Sister city Ma'am, Varanasi. with Ma'am, it's either with. I'm taking a guesswork. Go I for it. think it's either Russia or Japan. I'll go with Japan. Japan is right, Kyoto. तो जापान के साथ इंडिया का क्या रिलेशन अभी चल रहा है? Ma'am, it's a very positive relation that we have. Is it positive? Yes ma'am. बट जापान तो अभी एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। Ma'am, recent frictions आए हैं maybe. Just said positive है, तब क्या frictions आई हैं? Ma'am, अगर हम overall, if you look at the long history of the relationship with Japan, then ma'am, Japan has invested in our high-speed rail projects as well as in our nuclear projects. So, ma'am, if we see the long-term relation, then it is positive, but definitely few frictions have also been there, and I believe that working together we can overcome those frictions as well. टूरिस्ट सर्किट, रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट पे आजकल काफी फोकस चल रहा है उत्तर प्रदेश में, राइट? कैन यू जस्ट नेम अ टूरिस्ट सर्किट? Ma'am, we have Buddhist circuit, Jain circuit, Sufi circuit. Just one is good enough. तो अभी इसके वजह से कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, आप एग्जांपल दे सकते हो? मैम, अभी अयोध्या सिटी में एयरपोर्ट श्री पुरुषोत्तम राम करके एयरपोर्ट है, उनकी उसकी बिगनिंग हो रही है। मैम, ऑल्सो गोरखपुर में भी एक एयरपोर्ट स्टार्ट करा जा रहा है ताकि जो लिंक है नेपाल के साथ वो बेटर। बट ये रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट नहीं होगा। यस क्या है गोरखपुर वाला? मैम, आई थिंक दिस विल नॉट कम अंडर द रिलीजियस सर्किट। यस मैम। कुशीनगर विल कम बट नॉट गोरखपुरम। यस मैम, यस मैम। तो ये टूरिस्ट सर्किट बना के इंडिया क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है? मैम, वी आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट फुटफॉल both at the national level as well as the international level. So we are leveraging a soft power game. Definitely, ma'am. Which countries are going to get affected because of this? Ma'am, because we are promoting Buddhism circuit, Jain circuit, ma'am, all the Southeast Asian countries, they would like to visit the hub of Buddhism because Lord Buddha was born in Uttar Pradesh. Okay, thank you, Smriti. That's all from my end. Thank you, Smriti. Your interview is over. Kindly wait outside for a few minutes. We'll call you again. Huh? Smriti, Yes, sir. how do you assess your own performance? Sir, I think it was average. I think our opinion is different. You have done excellently well. Your articulation is excellent. You are equally at ease with Hindi or English. That's one good major point. But one thing I would like to advise you, आप अपना आई कॉन्टैक्ट जो है थोड़ा रोटेट करते रहिए. हाँ जी सर. Keep looking at other members also. Instead of fixing your gaze at only one person, keep rotating your eye contact. उनको भी इन्वॉल्व करिए. और सेफ्टी ऑफ वीमेन इज़ वेरी मच इन द न्यूज़. आपका इंटरव्यू कब है?
सर अभी 9th को ही है इलाहाबाद 9 में। जनवरी। यस सर। ओ, सेफ्टी ऑफ वीमेन के बारे में कुछ पूछ सकते हैं? हाँ जी सर, रिसेंट BHU IIT में जो BHU हुआ में था, केस है सर। उसमें whom do you blame for the delay in arresting the accused? सर एडमिनिस्ट्रेशन। सर FIR चार्जशीट FIR बहुत लेट डिले फाइल हुई थी, और सर आई थिंक ये न्यू केस नहीं था सर, पहले भी उन्होंने ऐसे क्राइम्स कमिट करे थे। हाँ, तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रोएक्टिव लेवल पर इसे लेना चाहिए था, पहले ही बहुत लेट कर दिया गया। lack of political will is one thing. Can you say that? सर आई थिंक एवरीवन इज, वी शुड ब्लेम एवरीवन सर। अगर हम पर्टिकुलरली, Bureaucracy also has to share the blame. No? यस सर, Bureaucracy, police, force, सोसाइटी, politicians. कॉलेज, यस सर। तो आपका अच्छा रहा, और आपका वो जो आपने जवाब दिया, जान है तो जान है, that will see you through. You know, that's a very बहुत अच्छा था। good answer. I don't know how you couldn't make it in the civil service examinations of UPSC. You could have made it. सर आई I डू don't know स्टिल what हैव to- एन अटेम्प्ट, आई विल बी। You have time? यस सर, हाँ, ज़रूर बैठिए यस उसमें आप। सर। और बस और तो मेरे को कोई खास कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल। बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। बट मैम एक आध पॉइंट्स आपको, मैं आपको सर, मुझे सर मैम, आई वाज वेट वंडरिंग कि क्या हो रहा था। मैम आई वाज आल्सो वेरी कॉन्शियस, बट मतलब सब मैम अभी भी वही। नहीं ठीक है, बट यू नो इफ यू कैनॉट मेक दैट सेम थिंग अगेन एंड अगेन, राइट? आई एग्री So मैम, वही, डेफिनेटली। हाँ, मतलब बैक ऑफ द माइंड दैट वाज देयर, दैट आई एम डूइंग दिस मिस्टेक रिपीटेडली, बट नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो कैंडिडेट आया था ना, वो भी सर मैम कर रहा था, तो आई वाज वंडरिंग कि ये क्या कोई मतलब यू नो हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इट। इसको थोड़ा सा थोड़ा कंट्रोल कर ली उसको। ऐसा है, सच में मैडम। टेंशन लेने की बात। मैडम। एक आध चीज़ें क्योंकि 9 तारीख को ही है ना, यस सर। तो एक आध चीज़ें बस मैं कहूँगा कि जैसे जब आपने कहा कि आई टेक अ मिनट, तो ये ऑर्डर की तरह लगा, सॉरी सर। तो मैं पीछे लगा देना है उसमें। May I take some time? May I take a तो few फिर seconds? उससे क्या होगा कि पोलाइटनेस आपका दिखेगा। तो ऐसा 2-3 जगह हो गया। जैसे आपने कहा कि आई विल डिफर, तो आई विल डिफर बोलते के साथ लगता है जैसे आप कान पर लग रहा है कि मतलब आपने बहुत, मीडिया पैनल तो है नहीं, है ना, तो ये एक ध्यान You रखना should agree to disagree. I am Very making polite. I am making a guess. You are no one to making a guess. You have to take permission. सर मे आई हाँ, मे तो मे आप करके पूछिए yes, sir. पहले कि आप गेस कर सकती हैं कि नहीं, वो भी आपको पैनल से पूछना होगा, ओके ओके बोर्ड सर। से पूछना होगा, है ना। तो बस पूरे इंटरव्यू में मुझे इतनी छोटी सी बात लगी जो आपको बताना है। अदरवाइज हम सारे लोग यही सोच रहे थे कि आपका तो यूपीएससी का डैफ होना चाहिए था ये। हाँ, मैं वही बस। हैव यू बीन टू अ यूपीएससी इंटरव्यू? नो मैम। नो। You must keep up, you know. एंड यू थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ योर ऑप्शनल क्या है ऑप्शनल? सोशियोलॉजी? Sociology. यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट्स हो गए? सर 5 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, मैंने तीन मेंस लिखे हुए हैं अब सर। तो लास्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है सर। ट्राई ज़रूर करिए उसमें। हाँ जी सर। इसमें भी मिलेगी, एक अटेम्प्ट है, उसको बहुत उसको जोर कर शोर से लीजिए, देना है, उसमें भी मिलेगी, आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि अपीयरेंस के लेवल पर, बातचीत के लेवल पर आपका छोटे मोटे मिस्टेक्स आपकी पर्सनालिटी ढक दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार सामने ऐसी पर्सनालिटीज़ बैठी होती हैं कि छोटे मोटे मिस्टेक्स को इंसान इग्नोर कर देता है कि ठीक है यार, इस पर नहीं जाना। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिसमें लोग खोजते हैं कि बस मिल जाए, कि गलती हुई नहीं कि उसने नोट किया। बिल्कुल। तो आपके साथ प्लस पॉइंट है कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी छोटी चीज़ें ऐसे ही इग्नोर हो जाएंगी, है ना। वेरी गुड। हाँ सर, एक चीज़ पूछनी थी सर। हिंदी जो मेरा कम्युनिकेशन था सर, अगर वो ठीक आ रहा था, बिकॉज आई थिंक मेजरली हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे मुझसे। ये वहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने बीच में, और मैम ने भी हिंदी में काफ़ी सवाल पूछे। उसका रीज़न यही है कि यूपी में जनरली हिंदी में सवाल पूछे जाते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, सर ने हिंदी में शुरू मैंने किया, हिंदी में किया था कि तो आप आपने अपना परिचय इंग्लिश में दीजिए। रिस्पॉन्ड किया, हाँ, वो ठीक नहीं होगा। तो फिर आपको हिंदी ही ऑप्ट करना चाहिए। वहाँ आपकी हिंदी भी अच्छी है, बराबर अच्छी है, जितनी अच्छी अंग्रेज़ी है उतनी अच्छी हिंदी है। सर मैं उस टाइम सोच रही थी सर, पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरे को हिंदी टर्म नहीं मिल रहा था सर, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी का मतलब उसमें थोड़ा बहुत कभी ये इंग्लिश नहीं इस्तेमाल है कर कि सकती एकदम हैं आप। एक एक चीज़ हिंदी में हो। आजकल ऐसी हिंदी कहीं नहीं बोली जा सकती। जिस एरा में हम लोग ही नहीं रह रहे हैं ना, बोर्ड मेंबर्स भी उसी एरा में रह रहे हैं,
तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत अच्छे से बोल सकती हैं। Thank you and All best the of best luck. to you. Best of luck to you. Thank you. Beautiful.